Good morning class 10th. Today we are going to do remaining question of exercise 6.5. Here you can see question number 12 says the pole of the height 6 meter and 11 meter stand on the ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. Okay, this is very easy question. सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, एक पोल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग देंगे ए बी और इसकी लंबाई दी हुई है 6 मीटर। दूसरा पोल बनाएंगे जिसको नाम देंगे हम लोग सी डी, इसकी लंबाई दी हुई है 11 मीटर। ओके, और इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर और हम लोगों को इन दोनों पोल के टॉप के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ओके, सो फ्रॉम figure we can write given values are pole 1, or we can also write AB is equal to 6 meter, CD is equal to 11 meter and BD is equal to 12 meter. To find AC is equal to question mark. Okay, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए से बी डी के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ए ई। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने ए ई इज इक्वल टू बी डी एंड ए ई इज पैरेलल टू बी डी। देयरफॉर बी डी ई ए, ओके, देयरफॉर quadrilateral ABDE is parallelogram, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये साइड इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ओके, जिसकी वजह से अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ED is equal to AB is equal to 6 meter. Okay, now we got the value here 12 meter and 6 meter. So what is the value of C? C is equal to CD minus ED. So the CD is 11 meter given, okay, and ED is 6 meter. So C become 5 meter. Now we will apply here Pythagoras theorem in triangle CEA or AEC. Okay, in triangle AEC, angle E is right angle. Now AC square is equal to C square plus AE square by Pythagoras. Okay, by Pythagoras. Now put the value of C and A. What is the value of C? 5 meter and A 12 meter. 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा। सो AC इज इक्वल टू 25 plus 144 which is equal to 169 equal to 13 मीटर। इसका मतलब दोनों पोल्स के जो टॉप हैं वो 13 मीटर की दूरी पर हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says D and E are the points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Okay, prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Okay, so first of all we will construct the diagram because diagram is necessary. So here we are going to construct diagram. Say AB triangle ABC
ओके, ए बी सी, सी पर राइट एंगल है। उसके बाद डी लाई ऑन सी ए, सो डी जो है सी ए पर लाई कर रहा है, और ई लाई ऑन सी बी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू गिवन information we will join the points, the vertices. So AE is a line segment, so where is AE plus BD, okay, AE plus BD is equal to AB plus D is also joined. Okay, this is our diagram. Let's start. First of all, you can see here AB and D both are the hypotenuse of right angle triangle ACB and DCE. So we will find here solution to prove AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Okay, so we will start from AB square plus DE square. So we can write in right angle triangle ACB or ABC angle C is 90 degree. So in triangle ABC you can write AB square is equal to AC square plus BC square. Okay, say equation by Pythagoras, say equation 1 by Pythagoras theorem. Again in triangle DEC, okay, DEC angle C 90 degree, so therefore DE square is equal to DC square plus EC square. Okay, say equation 2 by same reason, adding equation 1 and 2 because AB square and DE square addition में है, therefore we will write here adding equation 1 and 2 ऐड कर देंगे हम लोग. सो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर plus DC square plus EC square. Okay, now try to focus on here A. So where is A? A is here. So A is also the part of right angle triangle ACE. Okay, or A is hypotenuse. It means A will be equal to AC square plus EC square. तो इसमें देखिए AC और EC है. Yes, of course, AC or EC. It means we can replace AC and EC by AE. Okay. Similarly, another value is BD. Where is BD? BD is here. So BD is also the part of the hypotenuse of right angle triangle DCB or DBC. Okay. So we can make the pair from here. AB square plus DE square is equal to AC square plus EC square. Okay, as you know, in addition you can use commutative property. It means you can change the order of the values, plus BC square plus DC square. Okay, now look here. Say equation 3. You may change directly from here, but you need to represent by statement. Okay, now we will consider again in triangle ACE or AEC. Angle C is 90 degree. Okay, so AE square is equal to AC square plus EC square. AC square plus EC square. Okay, or you can also write this statement in right hand side, but leave it.
से इक्वेशन 4 by Pythagoras. Again in triangle DBC, okay, in triangle BDC angle C is 90 degree. So now again we can write here BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ओके, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी, सो DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से इक्वेशन 5 बाय सेम रीजन. नाउ यूजिंग 3, 4, 5, यूजिंग 3, 4 एंड 5 आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को इससे रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर. सो AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. Hence proved. I hope you understood. Now this is question number 14. The perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है इसके बीच के रिलेशंस में कि DB is equal to 3CD. ओके, and we need to prove 2AB square is equal to AC square plus BC square. So let's start. This is very interesting question. और यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करना जानते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा. टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. गिवन में आप चाहें तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DB इज इक्वल टू 3CD. ये सारी चीज़ें दी हुई है. चलिए शुरू करते हैं. प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पर AD अगर इस तरीके से लिखते हैं AD का स्क्वायर, इट मीन्स AD इज इक्वल टू AD. तो आई होप कि कोई बात जो है रॉन्ग नहीं होगी, आप लिख सकते हैं. अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तब भी कोई बात नहीं होगी, ये सही है. ओके, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. नाउ यू कैन रिप्लेस दिस AD from both the triangle. If you will consider the triangle ADB, so AD is equal to AB minus DB square. Okay, you can write here AB square minus DB square. Okay, why? Because this is right angle triangle और right angle triangle में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के. तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. तो AD परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर के बराबर हम लोगों ने हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. लेफ्ट साइड के राइट एंगल ट्राइंगल में भी सेम कंडीशन हम फॉलो करेंगे. हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन्स AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर. ओके, और आपको ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना है. लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपको AB चाहिए, तो बाकी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे. So now AB square is equal to AC square minus CD square plus DB square. Okay. Now you can see in your target, आपके टारगेट में जो टर्म है वो BC है, न कि CD और DB. तो इस CD और DB को हम लोग इस रिलेशन से बदलने की कोशिश करेंगे. ओके, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अभी हम लोग CB पर आते हैं और BC. सो BC कैन बी रिटन एज BC इज इक्वल टू CD प्लस DB. BC इज इक्वल टू CD प्लस DB. ओके, लेकिन DB बराबर दिया है 3CD. ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट CD प्लस 3CD और 4CD. ओके,
सो सी डी को हमें रिप्लेस करना है इन द टर्म ऑफ बी सी, तो सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी बाई 4। ओके, से इक्वेशन 2। अगेन इस वाले टर्म को भी चेंज करना है, डी बी को भी। अगेन वी विल राइट बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी। अब हम लोग सी डी को डी बी के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो सी डी बराबर डी बी बाई 3। तो यहाँ लिख सकते हैं डी बी बाई 3 प्लस डी बी। ओके, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी बी प्लस 3dB। इट मीन्स 4dB बाई 3। तो इन दोनों को आप रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, सो dB इज इक्वल टू 3BC बाई 4। ओके, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, से इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे सी डी की वैल्यू को एंड डी बी की वैल्यू को, सी डी। ओके, सो नाउ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी डी, सी डी इज बी सी बाई 4। सो बी सी बाई 4 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी बी, 3BC बाई 4, 3BC बाई 4 का स्क्वायर। ओके, नाउ एक्सपैंड इट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 16 प्लस 9BC स्क्वायर बाई 16। ओके, सो यू कैन टेक एलसीएम, ए सी स्क्वायर माइनस, केवल इन दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा बी सी स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर। सो यू कैन राइट हियर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस, वेट 9BC प्लस में है और एक 1BC माइनस में है, तो प्लस 8BC बचेगा, प्लस 8BC स्क्वायर अपॉन में 16, 8 2 जा 16। सो ए सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। अब आप एलसीएम लेंगे, सो ए बी स्क्वायर, या यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम में यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। सो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव। ओके, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई टू डू, and thank you for watching.